Here comes the dog, Braun Breaker. And he is ready to fight Roman Reigns tonight. But will the big dog be able to take down the OTC Roman Reigns, who is also here? Roman Reigns destroyed Braun Breaker multiple times in the past. But the biggest question is, will the tribal chief be able to destroy the dog tonight? Whose spear is better? Who is more stronger? Who is more powerful? We will find out tonight when Roman Reigns, the tribal chief, won, go head to head with the dog, the newest client of Paul Heyman, Braun Breaker. To Roman Reigns through the table. A painful attack by the dog to the tribal chief. Can you believe it? Oh, and now Roman Reigns is smashing Bronson Reed. Paul Heyman is crying in pain after seeing this. Oh, Reigns. Oh, look at the strength of Bronson Reed. Trying to overpower the tribal chief, but Roman Reigns counters. And now the tribal chief is looking for a Samoan drop. Look at the strength of Roman Reigns. Oh no. Reigns, a spear caught by big Bronson Reed into a power bomb. Kick out by Roman. Roman Reigns shocked, and now again going for the spear. Oh my! A drop kick stuns the tribal chief. Bronson Reed sends Roman Reigns outside, and now with a suicide dive. What a match! Oh, super kick. Sends Roman Reigns outside again. Superman punch. This time Reigns blocks the suicide dive, and now second Superman punch. Covered by Reigns. Kick out by big Bronson Reed. And now Reigns smashing Reed outside the ring into the steel post. Again and again the tribal chief. Roman Reigns feeling it. Oh, Bronson Reed takes him down. Showing his toughness to Roman Reigns. And now making fun of the crowd also. Roman Reigns, look at Reigns. Down with the right hand. OTC is fighting back. This time he hits Reed and puts him down with a super Samoan drop from the top. Roman Reigns in full control of all the momentum. A spear to big Bronson Reed. Roman Reigns wins the match easily. Your winner. And now look at Paul Heyman with the Shula Fala on his neck, and Roman Reigns is here. Paul Heyman is scared of Roman Reigns, because he knows
his sins, everything he did to Roman Reigns in the past. But what Roman Reigns will do with Paul Heyman, that's the biggest question here. Roman Reigns is happy after winning the match, and now Reigns asking Paul Heyman for the Shula Fala. And now Paul Heyman, with a fear in his eyes, gives the Shula Fala to Roman Reigns. Wow. Oh, now Reigns got Paul Heyman into the guillotine choke. That's the biggest nightmare for Paul Heyman that came true tonight as Roman Reigns attacks Paul Heyman. And now Roman Reigns got his shoes back. Reigns proved tonight that nobody can beat him when it gets personal. Now, tying the shoes, giving them to the crowd. The dog, Braun Breaker, with a massive spear to Roman Reigns. Reigns was celebrating, but the dog out of nowhere came. I missed it. He tackled Buddy on the table. Destroying the celebration. Oh shit. Roman Reigns in so much pain. Oh no! Braun Breaker with a massive spear again to Roman Reigns. Second time Braun Breaker destroyed the tribal chief, and now the Oracle. The referees and officials, oh my! Try to stop Big Bronson Reed and Braun Breaker. The Bronson Reed again going towards the ring. And the dog leaves the ring. Only the OTC is laying inside. And he is. Oh! Tsunami by Big Bronson Reed. Roman Reigns is in very bad situation. He is injured already after those two dangerous spears. Oh, Jey Uso! Jey Uso is here to save his cousin. Super kick. One to Reed. Breaker and Reed. Oh, but Jey Uso can't stop these two monsters. As they destroy Jey Uso, and now the tsunami in a road to OTC Roman Reigns. This is very scary and dangerous. Look at Bronson Reed and Braun Breaker. They were frustrated with Roman Reigns, and now Reigns. Look at Reigns. Jey Uso and Roman Reigns. Now LA Knight going for the PFT, countered by the dog. Cover. Knight wins the match. And now Cody Rhodes is here. Smashing Drew McIntyre. Damn. Cody Rhodes is back. Rhodes escapes. Roman Reigns versus Braun Breaker. आखिर
कौन जीतेगा ये खतरनाक मैच और रोमन रेंस के रिटर्न के बाद कौन हो सकते हैं उनके 5 पॉसिबल खतरनाक ओपोनेंट्स, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्लैश इन पेरिस 2025 में हमने देखा कि कैसे ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड ने मिलकर रोमन रेंस को इतनी बुरी तरह मारा कि ओटीसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। रोमन रेंस को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था, जिसके बाद रोमन रेंस WWE से गायब हो गए और हमें अब तक वो WWE के टेलीविजन पर नहीं देखने मिले। लेकिन अगले महीने रोमन रेंस का रिटर्न हो जाएगा अक्टूबर में, और वहां हमें रोमन रेंस तबाही मचाते हुए दिखेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे रोमन रेंस के 5 बड़े मैचों के बारे में जो कि हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। नंबर 5 पर आता है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। जी हां दोस्तों, रोमन रेंस से ब्रॉन ब्रेकर ने क्लैश इन पेरिस में तगड़ा पंगा लिया है। ओटीसी को खतरनाक स्पीयर्स मारे ब्रॉन ब्रेकर ने क्लैश इन पेरिस में, क्योंकि रोमन रेंस ने पॉल हेमन को भी अपना शिकार बनाया था, ब्रॉनसन रीड को भी हरा दिया था। तो ब्रॉनसन रीड को हराने के बाद रोमन रेंस के सामने अगली चुनौती ब्रॉन ब्रेकर ही होने वाला है। रोमन रेंस एंड ब्रॉन ब्रेकर का मैच हमें क्राउन जूल में देखने को मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा बैंगर होगा। क्राउन जूल में रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच खतरनाक भिड़ंत होती हुई दिख सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर ये स्पीयर वर्सेस स्पीयर का मुकाबला होगा तो इसमें कौन जीतेगा? क्या ब्रॉनसन रीड की तरह ही ब्रॉन ब्रेकर को भी रोमन रेंस हराने में कामयाब होंगे, या फिर ब्रॉन ब्रेकर इस बार तगड़ा मामला सेट करके रोमन रेंस को हरा देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, मेरे हिसाब से रोमन रेंस इस मैच को भी जीत लेंगे, क्योंकि रेसलमेनिया 42 में उन्हें सामना करना है उनके अगले ओपोनेंट, जो कि हमारे लिस्ट में है नंबर 4 पर, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का। जी हां दोस्तों, रेसलमेनिया 42 में हम सब जानते हैं कि रोमन रेंस एंड सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच होने वाला है, और ये जो मैच है बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। रेसलमेनिया 42 की नाइट 1 या नाइट 2 को यह मैच मेन इवेंट करने वाला है। गारंटेड माना जा रहा है कि वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के पास ही रहेगा रेसलमेनिया 42 तक। इसी वजह से रोमन रेंस जो है सेथ रॉलिंस को टारगेट करते रहेंगे, और फाइनली रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस को मैच मिल ही जाएगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के खिलाफ, जिसके बाद हमें रेसलमेनिया 42 में इन दो भाइयों के बीच में खतरनाक मुकाबला देखने मिलेगा। और इस मैच में सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को हराकर रोमन रेंस बनेंगे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अब रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद में किसके खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करेंगे? तो वो बंदा आता है नंबर 3 पर, और वो है जैकब यारामी फाटू। जी हाँ दोस्तों, जैकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस एक और बड़ा ड्रीम मैच है, क्योंकि जैकब फाटू ने WWE में आने के बाद रोमन रेंस को काफी परेशान किया था सोलो सिक्वा के साथ मिलकर। जैकब फाटू पूरी ब्लड लाइन में अगर देखा जाए तो सबसे खतरनाक सुपरस्टार्स में से एक माना जाता है। जैकब फाटू रोमन रेंस को सिंगल्स मैच में कड़ी टक्कर दे सकता है। माना ऐसा भी जा रहा है कि जैकब फाटू रोमन रेंस के बाद अगला ट्राइबल चीफ भी बन सकता है, क्योंकि फाटू को तगड़ा सपोर्ट मिलता है फैंस की तरफ से। माना यह भी जा रहा है कि जैकब फाटू फ्यूचर रेसलमेनिया मेन इवेंटर है, जिससे पता चलता है कि फाटू को रोमन रेंस के खिलाफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच मिलेगा आने वाले समय में, अगर रोमन रेंस बने नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो दोस्तों, इस तरह से रोमन रेंस एंड जैकब फाटू भी एक बड़ा ड्रीम मैच है। नंबर 2 पर आता है रोमन रेंस वर्सेस टाला टोंगा। जी हाँ दोस्तों, सोलो सिक्वा का ये 7 फुटिया राक्षस जहां भी जाता है तबाही मचाता है, जहां भी जाता है गंद फैला देता है। लेकिन इसकी अकल ठिकाने लगाएंगे ओटीसी रोमन रेंस। जब ये रोमन रेंस के हत्थे चढ़ेगा तो बहुत पिटेगा। रोमन रेंस पहले भी कई सारे जायंट सुपरस्टार्स को धूल चटा चुके हैं, हरा चुके हैं, जैसे बिग शो ले लो, केन ले लो, मार्क हेनरी तक को रोमन रेंस ने खतरनाक तरीके से पेला। ब्रॉनसन रीड का भी हाल बेहाल कर डाला था ओटीसी ने क्लैश इन पेरिस में। तो ये टाला टोंगा किस खेत की मूली है, इसे भी रोमन रेंस तगड़े तरीके से पेलते हुए दिख सकते हैं, इसकी भी खटिया खड़ी कर सकते हैं। इस तरह से ये था नंबर 2 का ड्रीम मैच, रोमन रेंस वर्सेस टाला टोंगा। अब आता है नंबर 1 पे, जो कि होगा रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी। जी हाँ दोस्तों, ओबा फेमी NXT चैंपियन भी रहे हैं मल्टीपल टाइम्स और करंट NXT चैंपियन है। ओबा फेमी NXT में पूरी तरीके से डोमिनेट कर चुके हैं और बहुत जल्दी वो मेन रोस्टर में आएंगे। ओबा फेमी क्योंकि यंग टैलेंट है, यंग सुपरस्टार है, ब्रॉन
प्रॉन ब्रेकर की तरह ही तो उन्हें भी मेन रोस्टर में तगड़ा पुश मिलेगा, क्योंकि वो एक हैवीवेट रेसलर हैं और काफ़ी अच्छी रेसलिंग भी करते हैं। ओबा फेमी रोमन रेंस को तगड़ी टक्कर देने वाला है अगर इन दोनों का मैच होता है तो। लेकिन क्या ओबा फेमी ओटीसी को हराने का दमखम रखता है? क्या आपने कभी ओबा फेमी के मैचेस देखे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेसलिंग जस्टिस को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।